दोस्तों नमस्ते। आज चैप्टर नंबर 8 मल्टिपल्स एंड फैक्टर्स इन मराठी वी से दैट विभाज्य आणि विभाजक। विभाजक म्हणजेच अवयव, विभाजक मीन्स इन मराठी अवयव, that is factors. Multiples means विभाज्य and factors means विभाजक और अवयव। इस चैप्टर का आज स्टडी करना है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, दैट इज विभाज्यतेच्या कसोट्या। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2, दोनने विभाज्याची कसोटी। इफ देयर इज 0, 2, 4, 6 or 8 in the units place, the number is multiple of 2 or is exactly divisibility or exactly divisible by 2. For example, my dear friends, if any number we take here 98, okay, if the unit place and this is the 9 is it at tens place. If unit place having the number 0, 2, 4, 6 or 8, then we say that this 98 is divisible by 2. Okay, any number 0 or 2 or 4 or 6 or 8. Suppose that we take here 100 number, then its a unit place having 0, therefore this 100 is divisible by 2. Suppose another number we take here 83, units place is 3. There is no 0, 2, 4, 6 or 8, therefore 83 is not divisible by 2. Consider another number, suppose that 85, its units place having 5. There is no 0, 2, 4, 6 or 8, therefore this is not divisible by 2. Only that number, it's containing units place 0, 2, 4, 6 or 8, that number is said to be divisible by 2 or multiple of 2, exactly divisible by 2 or multiple of 2. Okay, is it understand, my dear friends? Then now another point is that, take here another point, test for divisibility by 5, that is विभाज्यते 5 ने विभाज्यतेची कसोटी। म्हणजे काय? टेस्ट फॉर डिव्हिजिबिलिटी बाय 5, 5 ने विभाज्यतेची कसोटी। एनी नंबर with 5 or 0 in the units place is a multiple of 5 or is divisible by 5. For example, take here 100, okay, units place having the number 0, okay, therefore this is divisible by 5 or multiple of 5. Consider another number 105 or 405. Okay, we observe the units place having 5, therefore this number is also multiple of 5 or divisible by 5. Another number, take here 1010, sorry 10,010, okay, then units place, observe the units place only, this is 0, units place having 0, then this number is divisible by 5 or multiple by 5. Another test for divisibility of by 10, विभाज्यतेच्या कसोट्यांमध्ये टेस्ट फॉर डिव्हिजिबिलिटी
बाय 10. 10 विभाज्यतेची कसोटी. यहाँ पे same concept, only units place containing 0. That is, any number that has 0 in units place is a multiple of 10. For example, consider here 200. Okay, units place containing or having units place having 0. Therefore, this number 200 is a multiple of 10, and this is also multiple of 5 also. Why? The test for divisibility by 5 is 5 or 0. Here 0 is available, units place having 0. Therefore, this number is divisible by 5 as well as 10. Then now, next number 1000. This is having units place containing 0. Therefore, this number 1000 is divisible by 10 or multiple of 10. Any number that has 0, the units place is a multiple of 10. Here 0 as well as 5. Therefore, this number is also multiple of 5. Okay. Then consider another number 400. Units place having 0, then multiple of 10 as well as multiple of 5. बहुत इजी है दोस्तों, ये टेस्ट ध्यान में रखना है, बहुत इजी है. यदि आप ये टेस्ट का स्टडी करोगे तो एग्जाम्पल सॉल्व के लिए बहुत इजी रहेंगे. टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2. इज इट more understand? If there is 0, 2, 4, 6 or 8 at units place, the number is a multiple of 2. Second is test for divisibility by 5. Any number with 5 or 0 in the units place is multiple of 5 or is divisible by 5. Same concept, test for divisibility by 10. Any number that has 0 in the units place is multiple of 10. Thank you. नमस्कार दोस्तों, अब प्रॉब्लम सेट 33 के एग्जाम्पल्स इस वीडियो में सॉल्व करने हैं. राइट 5 3-digit numbers that are multiples of 2. 5 numbers लिखने हैं 3 digit. First, second, third. 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 Okay? 3 digit numbers लिखने हैं that are multiple of 2. Therefore, we can use the divisibility test of 2. That is, units place having 0, 2, 4, 6 or 8. Any number containing its units place 0, 2, 4, 6 or 8. तो O number divisible by 2 or multiple of 2 रहेगा. ओके, तो यहाँ पे टेंस प्लेस और 100 प्लेस को कौन सा भी नंबर लिख सकते हैं. 9, 8, ओके, 7, 6 और कुछ भी 6, 0 और 1, 0 और 8, 8, 8 ऐसे नंबर लिख सकते हैं. सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, यूनिट प्लेस को 0, 2, 4, 6 or 8 होना units place. Understand? It is the most important point. Units place having 0, 2, 4, 6 or 8. Same concept we can use
In example number 2, write 5 3-digit numbers. 3 digits number 5 लिखने हैं. 1 number, 2, 3, 4 और 5. 3 digits number लिखने हैं. इसके लिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. इस प्रकार 3 डिजिट नंबर लिखने हैं. 5 की टेस्ट यूनिट्स प्लेस पर 0 और 5 रहेगा तो 5 की टेस्ट लगती है. ये आपने बेसिक कंसेप्ट में देखा है, बहुत इजी है. 0 और 5, 0 और 5, 0 और 5, 0 और 5. और अब 10 प्लेस और 100 प्लेस को कौन से भी नंबर लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 100 लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 255 लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 890 लिखेंगे, कौन से भी 7 4 लिखेंगे. ओके, या फिर तुम बोलोगे तो 800 लिखेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि यूनिट्स प्लेस पे 0 और 5 ये नंबर होना जरूरी है. माय डियर फ्रेंड, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5 का स्टडी आपने यहाँ पे किया है. ओके, यहाँ पे ध्यान में लो. माय डियर फ्रेंड्स, कीप इन माइंड, इफ एनी नंबर having units place 0 or 5, then that number is multiple of 5. Very simple. Then now write 5 3-digit numbers that are multiple of 10. ये भी सेम है लेकिन यूनिट्स प्लेस पे 0 होना. ओके, 5 नंबर्स लिखने हैं तो 5 नंबर्स 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और लास्ट में 5 नंबर. ओके, 3 डिजिट है, इसके लिए 3 डिजिट यहाँ पे काउंट करो. फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड. और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो यूनिट्स प्लेस आएगा वो 0 होना चाहिए. यूनिट्स प्लेस पे 0 होना चाहिए. दैट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10 और मल्टीपल्स ऑफ 10. दिस इज द यूनिट्स प्लेस. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स प्लेस. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इजी है. मल्टीपल ऑफ 10 है तो यहाँ पे 0 ही होना. यूनिट प्लेस पे 0 ही होना, दूसरा नंबर यहाँ पे नहीं चलेगा. ओके, तो यहाँ पे तुम कौन सा भी नंबर लिख सकते हैं. यहाँ पे 7 7. ओके, यहाँ पे तुम 8 0, यहाँ पे 9 4, यहाँ पे 8 7, एनी नंबर 7 5. The definition is that any number having unit place is 0, then that number is multiple of 10. Very simple है. अब देखो my dear friends, write 5 numbers that are multiple of 2 as well as 3. Then this is the test of 6. ओके, 5 नंबर्स लिखना है माय डियर फ्रेंड्स. तो लिखेंगे यहाँ पे 5 नंबर्स. 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और 5.
यहाँ पे 3 डिजिट लिखो, 4 डिजिट लिखो, ऐसा कोई कुछ भी बोला नहीं है। राइट 5 नंबर्स, तो 5 नंबर्स लिखना है दैट आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 3। मतलब जिस नंबर को 2 की टेस्ट भी लगती है और 3 की टेस्ट भी लगती है, उस नंबर को 6 की टेस्ट लगती है माय डियर फ्रेंड्स। दैट इज multiple of 6, that is table of 6. In easy language we say that here suppose that 12, okay, 2 की भी लगती है और 3 की भी लगती है। ओके इस प्रकार 6 का लिखा है मैंने, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड 6 6 जा 36। ऑब्जर्वेशन करो, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है 0 है, मतलब 2 की भी टेस्ट लगती है, और 2 + 1 करो 3, वो सम भी 3 के टेबल में आती है, मतलब 3 की भी टेस्ट लगती है। यहाँ पे भी देखो यूनिट प्लेस को 2 है, इसके लिए यहाँ पे 2 की भी टेस्ट लगती है, और 8 + 1 करो 9, और उसको 9 को भी 3 की टेस्ट लगती है। यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस है 4, इसके लिए यहाँ पे 2 की टेस्ट लगती है, और 2 + 4 करो 6, और 6 भी 3 के टेबल में आता है। यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस को 0 है, इसके लिए यहाँ पे 2 की टेस्ट लगती है, और 3 + 0 ये भी 3 के टेबल में आता है। देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस को 6 है, इसके लिए यहाँ पे 2 की टेस्ट लगती है, और 3 + 6 9, 9 भी 3 के टेबल में आता है। इस प्रकार बहुत इजी है प्यारे दोस्त, ध्यान में रखो। टेस्ट विजिबिलिटी ऑफ टेस्ट का स्टडी करो, लर्न करो, और वह कंसेप्ट, इस कंसेप्ट का यूज यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व के वक्त करना है। यूनिट प्लेस को ध्यान में रखो, तो 0 2 4 8 आएगा, मल्टीपल ऑफ 2। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5, मतलब यूनिट प्लेस को 0 और 5 ये दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर आएगा तो मल्टीपल ऑफ 5 रहेगा। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 10 है, यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, ये कौन सा भी नंबर हो उसके यूनिट प्लेस को 0 रहेगा तो वो नंबर मल्टीपल ऑफ 10 रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत इजी है। राइट 5 नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 3, मतलब 2 की भी टेस्ट लगती है, ऐसा नंबर होना कि उसको 2 की भी टेस्ट लगती है और 3 की भी टेस्ट लगती है। इसका मतलब ये ध्यान में रखना है, जिस नंबर को 2 की टेस्ट भी लगती है और 3 की टेस्ट भी लगती है, उसको 6 की टेस्ट लगती है। दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और मल्टीपल ऑफ 6, वट एवर इट मे बी वन एंड दी सेम। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, अब एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अ रिबन इज 3 मीटर लॉन्ग। एग्जाम्पल में रिबन दिया है और रिबन की लेंथ है, रिबन हैविंग लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रिबन, ऐसा बोलेंगे, लेंथ ऑफ रिबन इज इक्वल टू 3 मीटर। ओके, कैन वी कट इट into 50 centimeter pieces having nothing left on? First we convert here, 50 सेंटीमीटर के टुकड़े करना है तो बेस मालूम होना चाहिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, therefore 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। मतलब ए रिबन 300 सेंटीमीटर का है, इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर का है। ओके, तो सीधी बात है
कि 50 मीटर के पीसेस करना है और वी हैव द रिले 50 एंड 300. 300 इज अ मल्टीपल ऑफ 50. 50 का टेबल बोलो, उसमें 300 आएगा. ओके, तो इसके लिए यहाँ पे नथिंग इज लेफ्ट ओवर, कोई बचेगा नहीं, क्योंकि 300 इज अ मल्टीपल ऑफ 50. राइट द रीजन. यस, दिस इज द रीजन. 300 इज अ मल्टीपल ऑफ 50. तो यहाँ पे डिवीजन करेंगे. 300 डिवाइडेड बाय 50. 50 के पीसेस करना है. 50 का टेबल बोलो 300 तक, मतलब 556 जा 300. ओके, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 है. रिमाइंडर यहाँ पे 0 है. रिमाइंडर 0 है तो नथिंग इज लेफ्ट ओवर. ओके, दैट इज इन सिंपल लैंग्वेज वी से दैट 300 इज अ मल्टीपल ऑफ 50. ओके, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, इसकी वजह से क्वेश्चन 6 है, मतलब ये रिबन के 6 पीसेस बनेंगे. तो देखो, ए फर्स्ट पीस, ए सेकेंड, ए थर्ड, ए फोर्थ, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर का पीस बनेगा. देखो, टैली भी मार सकते हैं यहाँ पे माय प्यारे दोस्त, टैली भी मार सकते हैं. देखो, ए फर्स्ट पीस, ए सेकेंड, ए थर्ड, ए फोर्थ, ए फिफ्थ और ए 6. ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन 6 आया है, मतलब 6 पीसेस क्वेश्चन. दिस इज द आंसर. ओके, यहाँ पे ए भी 50 सेंटीमीटर का है, ए भी 50 सेंटीमीटर का है, ए पीस थर्ड नंबर का भी 50 सेंटीमीटर का है. 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर. टैली मार सकते हैं. देखो, ए 50 और 50, 150, 150 एंड 50, 200, 250, 250 एंड प्लस 50 करो 300. ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कैन वी कट इट इनटू 50 सेंटीमीटर पीसेस एंड हैविंग नथिंग लेफ्ट ओवर. यस, तो आंसर लिखेंगे यस. वी कट इट, वी कट द रिबन, we cut the ribbon it into 50 centimeter pieces, having nothing left over, having nothing left over, because write the reason why. because उसका कारण है simply 300 centimeter is multiple of 50 सेंटीमीटर. और इससे भी सिंपल रीजन लिख सकते हैं, और इससे भी सिंपल, और रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. therefore this is the reason. write down. नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में 4th नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे. यहाँ पे अ रिबन दिया है 3 मीटर लॉन्ग का. कंसिडर दिस इज द रिबन हैविंग लेंथ 3 मीटर. ओके, यहाँ पे फर्स्ट पीस मतलब 8 पीसेस किया है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पीस है, सेकंड, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, 7th है और 8th पीस है. ऐसा यहाँ पे इस रिबन के 8 पीस किए हैं. ओके, तो हर
पीस की लेंथ, लंबाई 40 सेंटीमीटर है। ओके, हर मतलब ईच पीस हैविंग लेंथ 40 सेंटीमीटर। ओके, इसकी पूरी लंबाई है 3 मीटर। ओके, ईच पीस हैविंग लेंथ 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर के टुकड़े करना है, वो 8 टुकड़े करना है, ये यहाँ पे दिया है। ओके, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, और इसके भी 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो फिर क्या करना पड़ेगा? A ribbon is 3 meter long. I need 8 pieces of ribbon, each piece of length 40 centimeter. How many centimeters shorter is ribbon than the length I need? तो कितने सेंटीमीटर यहाँ पे कम पड़ेंगे? ऐसा दिया है 8 पीस के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे रीडिंग दिया है मीटर में और यहाँ पे सेंटीमीटर में, मतलब दिस कन्वर्शन वी हैव 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर की ये रिबन दी है। तो इसके पीसेस 40-40 के करने हैं, तो 300 सेंटीमीटर की रिबन अपने पास है और 40 सेंटीमीटर के टुकड़े करना है। तो 40 का टेबल बोलो और 300 को ढूंढो। तो यहाँ पे 40 का 7 टाइम्स 280 आता है। ओके, तो 7 टुकड़े बनेंगे 40-40 के, और उसके बाद एक क्वेश्चन 7 है यहाँ पे आएगा। ओके, देयरफॉर 7 पीस 7 तक 40-40 के बनेंगे, और यहाँ पे जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो आया है वो आया है 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर इज बैलेंस आफ्टर 7th पीस। ओके, अपने पास आई हैव टोटली 300 सेंटीमीटर। I have 300 सेंटीमीटर ऑफ रिबन। ओके, अपने पास 300 सेंटीमीटर की रिबन है, उसमें से रिबन, ओके, we can use 7 ribbon. We can use ribbon for 7th piece. 7th piece is equal to 280। कैसे लिया इसको? तो 7 मल्टीप्लाई बाय 40, ऐसे 280 सेंटीमीटर रिबन यूज किया है। ओके, 280 सेंटीमीटर की रिबन यूज किया है, मतलब अपने पास टोटल रिबन थी 300। ओके, टोटल रिबन इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, और 7th पीस के लिए वी कैन यूजिंग ribbon for 7 pieces is equal to 280 सेंटीमीटर। इसको यूज किया, और बैलेंस कितनी है? बैलेंस आफ्टर 7 पीस, बैलेंस रिबन आफ्टर 7 पीस, बैलेंस रिबन आफ्टर 7 पीस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे अपने रिमाइंडर आया है 20 सेंटीमीटर, और 40 की जरूरत है, तो वी रिक्वायर 20 सेंटीमीटर। अपन को 20 सेंटीमीटर की
रिक्वायर है। therefore we required, therefore we required, मैं यहाँ पे लिख सकता we required, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर की जरूरत है। 20 सेंटीमीटर रिबन, वी रिक्वायर्ड रिबन is equal to 20 सेंटीमीटर for 8 pieces। ओके, तो लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। फाइनली आंसर यहाँ पे लिखना जरूरी है। क्या लिखेंगे? हाउ मेनी सेंटीमीटर शॉर्टर? 20 सेंटीमीटर shorter, 20 centimeter ribbon, ribbon is shorter, okay, shorter than the length I need, than the length I need, okay, I need, write down और स्क्रीनशॉट। थैंक यू। नमस्कार दोस्त, अभी एग्जाम्पल नंबर 5 का स्टडी करेंगे। इफ द नंबर गिवन इन द टेबल इज डिविजिबल बाय द गिवन डिवाइजर, पुट राइट इन द बॉक्स। यदि ये नंबर रो में जो दिए हैं 15, 30, 34 एंड 46, ये नंबर डिविजिबल बाय 2 रहेंगे तो ये नंबर जो है इनके डिविजिबल रहेंगे तो राइट क्लिक करना, और डिविजिबल नहीं रहेंगे तो क्रॉस की साइन करना। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि यहाँ पे 2, 5 और 10 है तो 2 की टेस्ट ध्यान में रखो। टेस्ट 2, टेस्ट फॉर 2, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 2। यूनिट प्लेस पे नंबर्स होना जरूरी है जो 0, 2, 4, 6 और 8। ओके, तो 5 की टेस्ट ध्यान में रखो। टेस्ट फॉर 5 यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होना जरूरी है। तो 10 की टेस्ट भी ध्यान में रखो। टेस्ट फॉर 10, टेस्ट फॉर 10 यूनिट प्लेस पे 0 होना जरूरी है। ओके, तो चलो ये टेस्ट ध्यान में लेते हुए इन एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो नॉट डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है तो डिविजिबल बाय 5। देखो यूनिट प्लेस पे 5 है तो डिविजिबल बाय 5। यूनिट प्लेस पे 5 है, इसके लिए 0, 10 की टेस्ट के लिए यूनिट प्लेस पे 0 होना तो नहीं है तो नॉट डिविजिबल बाय 10। सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूनिट प्लेस पे ध्यान दो। तो यहाँ पे 0 है तो 2 की टेस्ट लगेगी। यहाँ पे 0 है तो 0 और 5 के लिए 5 की टेस्ट लगती है। 10 की टेस्ट के लिए 0 होना, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है, 10 की टेस्ट लगेगी। 34 को देखो, यहाँ पे यूनिट प्लेस पर 4 है तो 2 की टेस्ट यहाँ पे लगती है। देखो यहाँ पे 4 है तो 2 की टेस्ट लगती है। 5 की टेस्ट के लिए 5 की टेस्ट देखो, 5 की टेस्ट के लिए 0 और 4 होना तो नहीं है तो 34 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। सेम कंसेप्ट टेस्ट 10 की यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, नहीं है तो नॉट डिविजिबल बाय 10। ओके, यहाँ पे भी देखो यूनिट प्लेस पे 6 है तो 2 की टेस्ट लगती है। 5 के लिए 0 और 5 होना यूनिट प्लेस पे नहीं है तो 46 इज नॉट डिविजिबल बाय 5।
10 की टेस्ट यूनिट प्लेस पे 0 होना, यहाँ पे नहीं है तो नॉट डिविजिबल बाय 10। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट देखो, यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे 5 है, यूनिट प्लेस पे 5 है, 2 की टेस्ट के लिए 0, 2 4 6 8 होना नहीं है तो यहाँ पे नॉट डिविजिबल, क्रॉस करो, 2 की टेस्ट नहीं लगती, मतलब 55 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। यूनिट प्लेस पे 5 है, 5 की टेस्ट लग रही है तो 55 इज डिविजिबल बाय 5। 10 की टेस्ट के लिए यूनिट प्लेस पे 0 होना नहीं है तो नहीं, 55 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। यहाँ पे भी देखो यूनिट प्लेस पे 3 है, नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 इनमें से कोई भी डिजिट चाहिए, वो नहीं है तो नॉट डिविजिबल बाय 2। 5 के लिए भी यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होना नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस रहेगा। 10 की टेस्ट के लिए 0 होना, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है, इसके लिए 63 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। सेम कंसेप्ट यूनिट प्लेस पे ध्यान दो, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है तो 2 की टेस्ट लगती है। यूनिट प्लेस पे 5 की टेस्ट के लिए 0 और 5 चाहिए, यहाँ पे 0 है तो 5 की टेस्ट लगती है। 10 की टेस्ट के लिए यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए है तो इसके लिए यहाँ पे 70 इज डिविजिबल बाय 10। 84 के लिए देखो यूनिट प्लेस पे 4 है, 2 की टेस्ट लगती है, देखो यहाँ पे 4 है। यहाँ पे 5 की टेस्ट के लिए यूनिट प्लेस पर 0 और 5 चाहिए, यह नहीं है तो 84 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। 10 की टेस्ट के लिए यूनिट प्लस पर 0 चाहिए, यहाँ पे नहीं है तो 84 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। वेरी सिंपल। मित्र दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आते हो और हमारे न्यू वीडियोस के लिए नोटिफिकेशंस मिलने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकॉन पर क्लिक करो। थैंक यू।